as we are going to study certain important part of the scripture and important part of our life, as we are, God willing, going to conclude 2025 and going to welcome 2026. May the Lord lead us and guide us. जैसा कि हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, हमारे जीवन की कुछ बातों को सीख रहे हैं, परमेश्वर पिता ने जैसा हमारे 2025 तक अगुवाई किया, वैसे ही 2026 में भी हमारी अगुवाई और सहायता करती रहे। So, this evening, I would like to take your attention to Philippians chapter 3. आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम फिलिपियों की किताब निकालेंगे और उसके तीसरे So अध्याय में please turn with me to Philippians chapter 3. I will read from verses 1 to 15, and then we'll pick up certain important themes in this text and then have a brief study. ओके। हम फिलिपियों की किताब 3 अध्याय का 1 से 15 वचन तक पढ़ेंगे और इसके कुछ मुख्य बिंदु को लेकर संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again is no trouble to me, and is a safeguard for you. Beware of dogs, beware of the evil workers, beware of the false circumcision. For we are the true circumcision, who worship in the Spirit of the Lord and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Although I myself might have confidence even in the flesh, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised the eighth day, of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to zeal a persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law found blameless. And whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ, and may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being confirmed to his death, in order that I may attain to the resurrection of the dead. Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as perfect, have this attitude. And if anything you have a different attitude, God will reveal that also to you. May the Lord bless this word and speak to us according to our needs. ये वचन पढ़े फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 15 वचन। इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी,
उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं, यही विचार रखें। यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, उसी के अनुसार चलें। This evening, I would like to focus on verse 12, 13, and 14. Apostle आह, Paul says, आह, one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. आज की संध्या के लिए हम फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को मनन करेंगे, जहाँ 13 वचन में से लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु जो केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हुआ जाता हूँ। To understand this particular fragment in this portion of Philippians, we need to have a graphic picture of the background of Philippians church. और फिलिपियों की किताब के अंदर इस वचन को समझने के लिए हमें फिलिपियों की कलिसिया की थोड़ी पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक है। Why Apostle Paul is writing this letter to the church at Philippi? और प्रेरित पौलुस जो है, फिलिपियों की चर्च को ये पत्री क्यों लिखा है? So, there are at least four reasons we understand when we read the whole epistle as many times as possible. और ये फिलिपियों की किताब में कुछ महत्वपूर्ण बात है, जो बिंदु है जिसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। To explain that the gospel could not be changed. और पहली चीज यहाँ पे बताई गई है कि फिलिपियों की पत्री को लिखने का जो मुख्य उद्देश्य था प्रेरित पौलुस के द्वारा, वो पहला ये था कि आ, अभी तक जो सुसमाचार के भाग को वहां लोग नहीं समझ पाए थे, उसको वो वर्णन करता है। No, that's not the point. Because Apostle Paul is in Roman jail, and they must have thought he's the gospel evangelist, champion of their church leader. When this brother, because he preached gospel, landed in the jail, and his hands are chained, his legs are chained. They must have been thinking, how about gospel? ओके, ओके, कल आई विल क्लियर। सो पहली चीज प्रेरित पौलुस ने एक खत इसलिए लिखा था, वो इस बात का वर्णन करना चाह रहा था कि सुसमाचार को कभी भी कैद में नहीं किया जा सकता या सुसमाचार को जेल में बंद नहीं किया जा सकता। So Apostle Paul is trying to say, my hands and legs might have been chained, but the gospel is not chained. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरे हाथ और पैर को तो कोई बांध सकते हैं, परंतु सुसमाचार को कोई बांध या कैद करके या कैद करके नहीं रख सकते हैं। So secondly, Apostle Paul trying to explain them that gospel motivates every believer to serve one another. और दूसरी बात प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार जो है, वो दूसरों को सेवा करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। A believer should not be self-centered and egoistic. Instead, a believer will try to help others. Believer will try to serve others. Believer will try to encourage, do something for the best of the others in their need. और पीड़ित पौलुस कहते हैं कि कोई भी जो विश्वासी है, वो स्वयं केंद्रित नहीं होना,
वो केवल अपने ही घमंड की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करना उसे, परंतु वो दूसरों की सेवा करना है, दूसरों को उत्साहित करना है और दूसरों के लिए वो जो कुछ भी मदद कर सकते हैं, उसमें वो उत्साह के साथ मदद करना है। By saying that, Apostle Paul gives a beautiful example of Timothy and Epaphroditus, how they have served others, how they were concerned for others' need. और इसका किस प्रकार दूसरों की ज़रूरत में उनकी विशेष सहायता हम कर सकते हैं, इसके उदाहरण देने के लिए प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को और इपफ्रुदीतुस के उदाहरण दिया है। And then he talks about how Jesus himself came down to this earth to serve others. How, that's the reason why he says, let the mind of Christ is there in you. और वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर उन्होंने दूसरों की सेवा की और इसलिए वो कहते हैं कि हम सब में मसीह का मन होना चाहिए। And in KJV version, he says, let the mind of Christ is there in you. But whereas in NASB version, which I follow, it goes like this: have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. तो केजीवी वर्शन में, किंग जेम्स वर्शन में जैसे लिखा है कि मसीह का मन हमें होना चाहिए, परंतु एनएसवी वर्शन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि जैसा मसीह का स्वभाव है, जैसा मसीह का जो चरित्र है, व्यवहार है, वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। He gives a beautiful explanation how Jesus is Christ. And anyway, God willing, in a very near future, we are going to study in detail. और उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया कि किस प्रकार यीशु ही मसीह है। And chapter 1, we see how there were different people speaking gospel in different ways. और पहले अध्याय में प्रेरित पौलुस ये भी बताते हैं कि किस प्रकार विभिन्न लोग जो हैं, उन्होंने अलग-अलग तरीके से किस प्रकार सुसमाचार सुनाया है। But people have no license, to preach gospel in their own way. And then Paul says, no, we need to take a stand. We need to fight for the truth. लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी रीति से सुसमाचार प्रचार करने की अधिकार नहीं है, परंतु उन्हें सच्चाई के लिए विशेष तरीके से खड़े होने की जरूरत है। If there is any deviation from the true gospel, and that gospel is called false gospel, and only false teachers will proclaim false gospel. और वो कहते हैं कि किसी को भी गलत सुसमाचार नहीं बताना है, और अगर कोई मेरे अलावा जो दूसरा सुसमाचार लोग सुनाते हैं, जिसे हम गलत सुसमाचार कहते हैं, तो वो गलत सुसमाचार सुनाने वाला मनुष्य गलत शिक्षक है। And so, third chapter, he explains that gospel is the justification by faith, not by works. और वो तीसरी बिंदु में ये बताते हैं कि जो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। And finally, in chapter 4, he wanted to thank. Actually, this letter is written to say, thank you for the gift you have sent so that I may sustain while I'm in the jail. और चौथे अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है धन्यवाद करते हैं अपने सुसमाचार के प्रत्येक सहकर्मियों का, क्योंकि उन्होंने उनकी जेल में सहायता की थी। So, as we have discussed earlier, chapter 1, Apostle Paul concentrates saying that defend the true gospel, for there are many false teachers are there among you. तो फिलिपियों की किताब 1 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो हैं वो एक सच्चे सुसमाचार की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे झूठे शिक्षक इस दुनिया में हैं। The gospel influences us and drives us to have the humility of mind so that we must serve others. That's what he explains beautifully in chapter 2. और फिलिपियों की किताब अध्याय 2 में बताते हैं कि सुसमाचार ये है कि किस प्रकार हम नम्र होकर, दीन होकर दूसरों की सेवा करना है, और ऐसे नम्र और दीन होने का मन हमारे अंदर में होना है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। And chapter 3 talks about the definition of the gospel. That means justification by faith, never by works. और फिलिपियों की किताब 3 अध्याय में वो सुसमाचार बताते हैं कि लोगों के कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु वे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं।
And chapter 4, he wanted to thank the people of God there in Philippi, saying that thank you for sending your gift with which you have become partnering in gospel. So be और a partner with the gospel by sharing resources. और फिलिपियों की किताब 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस उन प्रत्येक लोगों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनकी कुछ वस्तुओं के द्वारा और अन्य बातों के द्वारा सहायता की थी सुसमाचार की सेवा में। तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबका धन्यवादित हूँ कि आपने सुसमाचार की सेवा में मेरी सहायता की है। Since we are going to pick up a few fragments in the chapter 3, I'm going to give you the outlines of chapter 3, not chapter 1, chapter 2, and chapter 4. और चूंकि हमारे अध्ययन का विषय आज फिलिपियों की किताब अध्याय 3 में है, इसलिए हम 1, 2 और 4 अध्याय की बातें ज्यादा नहीं करेंगे। Chapter 3 can be further divided into 5 parts. 1 and 2 talks about know the false teachers and condemn them, and chapter 3 verses 3 to 11 know the gospel, him and his resurrection, and chapter 3 verses 12 to 16 know your goal and run to get there. Chapter 3 verses 17 to 19 know false teachers and be separated from them, and chapter 3 verses 20 to 21 know your heavenly status and prepare for it. और प्रेरित पौलुस जो है अध्ययन के दृष्टिकोण से ये फिलिपियों की किताब तीसरे अध्याय को लिखते हैं, उसे हम अध्ययन की रीति से 5 भागों में बांट सकते हैं। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय का 1 और 2 वचन में, जिसमें वो कहते हैं कि जो झूठे शिक्षक हैं आप उन्हें जानें और उनसे दूर रहें। दूसरे भाग में बांटते हैं 3 अध्याय के 3 वचन से लेकर 11 वचन में, जहाँ पर वो सुसमाचार को अच्छे से जानने के बारे में बताते हैं, जिसमें वो अपने और प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। और फिलिपियों की किताब 3 अध्याय के 12 से 16 के बीच में वो अपने निशाने की ओर हमें दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। और 17 वचन से लेकर 19 वचन के बीच में वो बताते हैं कि किस प्रकार हमें झूठे शिक्षक को जानना है और उससे अलग रहना है। और 20 और 21 वचन में बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने स्वर्गीय जो स्थिति को सही रखना है और उसके अनुसार हमें तैयार रहना है। So we're going to see these two subsections, chapter 3 verses 3 to 11 and chapter 3 verses 12 to 16. In these two subsections, the main theme is know the gospel. That means know him. Him means who? The Lord Jesus Christ. Know him, know Jesus, and know the power of resurrection of Jesus. And then having known him, having known the gospel, then you know yourself what is your goal, and then you run to get there. तो फिलिपियों की किताब 3 अध्याय का 3 से 11 और 12 से 16 के बीच में ये जो 2 भाग हैं, इसमें हम अध्ययन करेंगे। और इसमें प्रेरित पौलुस सुसमाचार को अच्छे से बताते हैं कि सुसमाचार क्या है, जिसमें वो कहते हैं कि सुसमाचार स्वयं यीशु मसीह है और उसका पुनरुत्थान है। और उसके पुनरुत्थान को जानने से हम स्वयं को अच्छे से जान सकते हैं। और जब हम स्वयं को अच्छे से जानते हैं, तो हम अपने जीवन के सही लक्ष्य को भी जान सकते हैं, जिसकी ओर हमें जाना है। Oh, thank you so much, brother. You have translated very well, fairly well. That's what exactly I was saying. So, I believe the methodology with which we are doing the study of the Bible, you must have got it by now. और इसके द्वारा आप जो परमेश्वर के वचन की जो अध्ययन करने का जो तरीका है, जिसे मेथोडोलॉजी कहते हैं, आप उसे समझ पाएंगे। If you have to be the faithful preacher of the Bible, of the servant of God, then you have to always take the text from its context. और अगर आप एक विश्वास योग्य सेवक और प्रचारक हैं बाइबिल के, तो जरूर आप प्रचार करते समय बाइबिल के जो सही वचन के सही संदर्भ को आप जरूर देखेंगे। We have no license to teach to the people of God whatever comes to our mind, or whatever we understand. You are muted. You have to unmute, brother. No, you are muted. You have to unmute. Voice is not coming.
Okay. He's on call. Actually, call from hospital, uncle. So It's okay. So as a preacher or as a Bible teacher, we are supposed to teach to the people of God only what is written in the text of the scripture which we read, but never go away from the text or the context of the scripture. तो हम एक बाइबल के प्रचारक होने के नाते, परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक होने के नाते, हम कभी भी बाइबल को प्रचार करते समय उसके मुख्य जो संदर्भ है वचन के, उससे बाहर नहीं जाना है और उसके वचन के संदर्भ के अंदर में ही रहकर हम प्रचार करना है। So let's come to the point. Apostle Paul says in chapter 3, verse 13, "One thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead." तो प्रेरितों के फिलिपियों की किताब 3 अध्याय के 13 में पौलुस जो है मुख्य 2 बातें लिखते हैं कि मैं एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गए उसे भूलता हूँ और आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। So he has something behind, he has something before him. और वो कहता है कि कुछ तो चीज़ हमारे आगे है और कुछ चीज़ हमारे पीछे है। So he says, I am pressing forward to move forward and leaving behind something which he is forgetting. और वो कहते हैं कि मैं आगे की बातों की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो एक काम कर रहा हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूल भी रहा हूँ। So he says he is forgetting, and what is he forgetting? Anyway, we are going to see further. और वो कहता है कि मैं कुछ बातों को भूल रहा हूँ, तो क्या बात है जिसे वो भूल रहा है? So if we should not, if we continue to remember what is behind, or else if our past is influencing the present, then definitely we have to face a great risk. सॉरी अंकल, फिर It's okay. प्लीज कंटिन्यू। It's okay. So Apostle Paul says, I'm trying to forget my past. That means past should not have influence in the present, which disrupts or which spoils the present, and which we will not be able to reach our goal that is ahead of us. और यहाँ प्रेरित पौलुस क्या कहना चाहते हैं कि जो बातें बीत चुकी है भूतकाल में, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, क्योंकि वो बातें वर्तमान में अगर रहेंगी तो वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है और वो वर्तमान में मेरी दशा को नष्ट करती हैं, कुछ चीज़ों को बिगाड़ती हैं और उसी के कारण मैं भविष्य में जो मिलने वाली जो इनाम है उसकी लक्ष्य की ओर मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। Please remember, it's not possible to forget everything in the past, but the past should not influence the present. And because of the influence of the past in the present, that should not deviate us reaching our aims and goals of our future. और हर चीज़ को भूलना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन बातों के लिए यहाँ पर पौलुस लिखा है,
जो बातें हमें प्रभावित करती हैं, जो बातें हमारे वर्तमान को प्रभावित करके हमारे भविष्य की गोल की ओर हमें बढ़ने नहीं देती है, उन बातों की ओर पौलुस कहता है कि उसे भूलना ज़रूरी है। So let's be very practical. Our past will definitely have some kind of influence in the present. But what I'm trying to say is there is a positive influence and there is a negative influence. तो अब यहाँ पे होता ये है कि जो बातें भूतकाल में बीत गई है हमारे जीवन में, वो बातें वर्तमान में 2 प्रकार से प्रभाव डालती हैं। या तो वो हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती है या तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में होता है। So, our past influence should not disturb us the present and disturb should not deviate our focus of our future. Should not paralyze our present energies or resources, which will not lead us to the proper goals which we have set. और पौलुस इस बात को अच्छे से बताते हैं कि जो भूतकाल है, वो हमारे वर्तमान को इस प्रकार से प्रभावित ना करे कि उसके कारण हमारा जो भविष्य के प्रति मुख्य जो फ़ोकस है, जो हमारा केंद्र हमारा हमको केंद्रित रहना है, उसके उससे हम विचलित हो जाएँ या हम उसकी उसके उस मार्ग से हट जाएँ या हमारे वर्तमान की ऊर्जा खत्म हो जाए या हमारे जो स्रोत हैं, वो समाप्त हो जाए, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर ना बढ़ सकें। ऐसा हमें भूतकाल को, अपने वर्तमान को प्रभावित होने नहीं देना है। So, very shortly, we are going to conclude 2025. और बहुत आप देखेंगे कि बहुत ही थोड़े समय में हम 2025 को संक्षिप्त रूप में समझ के हम इसको अलविदा कहने वाले हैं। As church leaders, and we need to introspect ourselves and we need to examine ourselves what kind of influence 2025 has over 2026. Don't know how long we live, but what would be our future target, for which we are heading to. और प्रियो हम अपने आप को आज जाँचने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को अच्छी रीति से परखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में ऐसी क्या-क्या बातें हुई है 2025 में, जो बातें हमारे 2026 को प्रभावित कर सकती हैं। और हमारे पास कितने साल का जीवन है वो तो हमें नहीं पता, परंतु कौन-सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भविष्य की जो हमने लक्ष्य रखा है, उसे प्रभावित कर सकता है, वो 2025 की बातें जो 2026 में जाएँगी, उन बातों को हम समझना है। So there are at least three influences of the past. As of now, let us consider. और मुख्य 3 बातें होती हैं प्रियो, जो भूतकाल की जो हमारे आगे की बातों को प्रभावित करती है, वो मुख्य 3 बातें हैं। I'm not going to go in details, but I will just, as a pass-on word, I say just a few things, and then I request you to please work on them. और हमें संक्षिप्त अध्ययन का तो समय नहीं है, परंतु हम कोशिश करेंगे कि उसके बिंदु को आपको समझाएँ ताकि आप उस पे काम करें और आगे अध्ययन करें। I will take you to Abraham. The scripture says that if Abraham kept his past in his mind, he would have failed in the mission which he has from the Lord. और हम देखते हैं कि अगर अब्राहम के बारे में पढ़ें, अगर उन्होंने अपने मन में अपने भूतकाल को रखा होता, तो कभी भी परमेश्वर के दिए हुए बुलाहट में वो आगे नहीं बढ़ पाते। Please turn with me to Hebrews chapter 11. मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय। And I'm reading verses 13 to 15. Hebrew chapter 11, verses 13 to 15. All these died, that means Hebrew chapter 11, verses 1 to 12. All these died in faith without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on this earth. For those who say such things make it clear that they were seeking a country of their own. And indeed, if they had been thinking of the country from which they were went out, that they would have had opportunity to return. और इब्रानियों की किताब 11 थे, उसके 13 और 14 में क्या लिखा है? ये सब विश्वासी की दशा में मरे। ये किसके बारे में कहता है? एक वचन से लेके 12 वचन के बीच में जितने लोगों का वर्णन है, उनके विषय में वो कहता है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे
और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। You know that Abraham has been called by the Lord, saying that get out of the country, get out of your family, and get out of all that culture, and be a separated from this. I'll show you a land. I will lead you and I'll guide you, and I will bless you, and we'll find all that in Genesis chapter 12. और हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और प्रभु ने उन्हें जब बुलाया उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय में, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू अपने देश को छोड़ना, तू अपने कुटुंब को छोड़ना, अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ना, और इन सब को छोड़ के अलग होकर तू चलना। मैं तुझे एक नई भूमि, वाचा की भूमि दिखाऊंगा, और मैं तुझे उस मार्ग में अगुवाई करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। So Bible says that all these Old Testament heroes, they were the model, and by looking at them we will learn precious lessons. और बाइबल के जो ज्ञानी हैं वो बताते हैं कि पुराने नियम के ये हीरो कहलाते हैं, और ये जितने पुराने नियम के नायक हैं ये हमारे लिए एक आदर्श हैं, जिनके जीवन को देखकर हम बहुत बातें सीखते हैं। The historians talk much about Abraham, saying that Abraham was an idolater. He used to make idols and then sell. That was his business when he was there in Chaldean. और इतिहासकार ये बताते हैं कि अब्राहम जो थे वो मूर्ति पूजा से संबंधित कार्य करने वालों के वंशज थे, और उनके परिवार में लोग मूर्ति बनाते थे, और जब वो अपने जन्मभूमि में रहते थे तो इसी प्रकार की मूर्तियों को बना के बेचा करते थे। So by faith he left the land of Chaldeans and then came to Palestine. In chapter 12 we find that. So that means he was, in our language, in our contemporary spiritual language, we can say that he was born again and he was converted, and he left all his old baggage of his anything concerned to his religion or in his faith, and he started following the Yahweh, Jehovah. और हम देखते हैं कि जो अब्राहम थे उन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया और वहां से अलग होकर वायदे के देश की ओर, जिसे परमेश्वर ने उन्हें बोला था, फिलिस्तीन की देश की ओर आगे बढ़ गए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब्राहम का एक प्रकार से नया जन्म हुआ था, और वो एक नए जन्म को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसलिए उन्होंने पुरानी वस्तु, पुराने रीति का विश्वास और पुरानी संस्कृति, इन सारी पुरानी बातों को छोड़कर वो आगे बढ़े। So that is number one. What has to be forgotten? All our past baggages, all our past story connected to our faith or religion, all that. Bible says that we were washed with the precious blood of Jesus Christ. We were cleansed. All our sins are forgiven, and we are converted, and we have become a new creation. We started walking according to the guidance of God Jehovah. और बाइबल ये बताती है कि हमारे पहली चीज जो हम सीख रहे हैं, पुरानी बातें जो भूलनी है, उसमें से पहली चीज क्या है? हमारे पुरानी जो इतिहास है, पुरानी कहानी जो है, वो पुरानी जो भी चीजें हम लेके चल रहे थे, हमारा पुराना विश्वास, पुराना धर्म, उन सब चीजों को हम भूलना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा धोए गए लोग हैं, शुद्ध किए लोग हैं। इसलिए हमें पुरानी बातों को भूलना है और हमें परिवर्तित होना है, नई सृष्टि बनना है, और याहवे की अर्थात परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, जैसे अब्राहम चला। Bible very clearly says that 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins from all unrighteousness, and he cleanses and he transforms us, and we become the child of God, and Holy Spirit dwells within us, and this Holy Spirit leads and guides us as Christ, whatever Christ said in the scriptures. और प्रियो, यूहन्ना का सुसमाचार जो पहला यूहन्ना, उसके पहले अध्याय के 9 वचन में हम जब देखेंगे यूहन्ना की पत्रियों में, तो वहां पे लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और इस प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होकर अपने पापों को क्षमा पाकर धर्मी ठहरते हैं, तो पवित्र आत्मा उसमें हमें बाद में अगुवाई करते हैं, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की मार्ग दिखाते हैं।
And Hebrews chapter 9, verse 14 talks very beautifully how the blood of Jesus Christ cleanses us, how our conscience is very clean, how we are delivered from the guilt conscience. Hebrews chapter 9, verse 14. और इब्रानियों की किताब 9 के 14 वचन के अनुसार वचन में बताता है हमें प्रियो कि किस प्रकार हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए लोग हैं और हमारा जो विवेक है वो भी शुद्ध किया गया है और किस प्रकार हमारा जो विवेक है वो पुराने मरे हुए कामों से और पाप दोष की भावना से शुद्ध हो जाता है। I'm reading Hebrews chapter 9 verse 14. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God? और इब्रानियों 9 के 14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। So the point of conversion, the point of transformation, the point of becoming a new creation in the Lord Jesus Christ will enable us to forget the past. The past will not have influence over the present. So of course we will be ashamed the sins which we have committed before conversion, the sins, horrible sins which did before transformation. That whenever we remember or call back, not many things will be remembered, maybe few, but we'll be ashamed, but that will not disturb our present. जैसा कि हम वचन में देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के प्रभु में जब हम आते हैं, हमारा परिवर्तन होता है, हमारा रूपांतरण होता है और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। तो जब नई सृष्टि बनते हैं तो पुरानी बातें जो है उसे हम इस प्रकार भूल जाते हैं कि वो हमारे नए जीवन को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुराने पाप हमें याद आते हैं, उनके कारण हमें शर्म आती है, परंतु फिर भी जब भी वो याद आता है, वो हमारे वर्तमान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। Sometimes devil reminds us the sins which were already forgiven. Devils may say that you are such a fellow, you did this, you did that, and then how you are eligible to serve the Lord. And he digs our graves. Once the Lord forgives and forgets, Bible says he buries all our old life. But devil digs the graves and causes us to get back to our world. That's, we should say that no, I'm forgiven. The blood of Jesus Christ cleansed, Bible says, and we rejoice, and we will never keep on dwelling on our past sins and forgiven sins, forgotten sins by God. और जैसा हम देखते हैं कि कई बार शैतान क्या करता है, हमारे पुराने पापों को याद दिलाता है और तुमने कभी ऐसा किया था, तुम ऐसे थे, तुमसे वो पाप हो गया था और तुम आज प्रभु की सेवा करने के लायक नहीं हो, तुम कैसे सेवा करोगे? ये बातें वो हमारे हृदय में डालता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जानते हैं कि हमारे पाप जो हैं, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए थे और वो गड़ा हुआ है, लेकिन शैतान क्या करता है, उस गड़े हुए पाप को उघाड़ देता है और फिर से वो हमारे अंदर भावना डालता है कि तुम अभी भी पापी हो, अयोग्य हो, लेकिन हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। इसलिए उन पुरानी बातों को अपने जीवन को प्रभावित ना करने देकर हमें सेवा में आगे बढ़ना है। So forgetting what lies behind, that's number one. So our sins are forgiven and our sins are buried, and the blood of Jesus Christ cleansed, and God never remembers anymore. And let's not those forgiven past buried sin should trouble our present. तो 3 चीजें जो भूलनी है उसमें से पहला चीज क्या है प्रियो, वो पाप है जिसे प्रभु ने क्षमा किया, गाड़ दिया और हमें अपने लहू से शुद्ध कर दिया है। इसलिए आज हमें उन पापों को याद नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर भी उसे याद नहीं रखते हैं और उसे अपने वर्तमान को प्रभावित करने नहीं देना है। And second one is example of Abraham. What Abraham did, the author of Hebrews says that if Abraham remembered the past of his life at the land of Chaldea, and if he is still
doesn't considered himself as a stranger and pilgrims of this earth, he could have returned. He could have gone back. और इब्रानियों के लेखक इस बात को बताते हैं अब्राहम के जीवन को देख के हमें पता चलता है कि वो चाहते तो वो पुरानी बातों को याद करके फिर से अपने देश में लौट सकते थे और वो लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो वायदे के देश में उन्होंने आगे जाने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया, नहीं तो वो भी पुरानी बातों पर रहकर पुराने अपने प्रदेश में वापस जा सकते थे। He did not allow his servant to take Isaac back to the land. Abraham died there, he was buried there. Abraham's wife Sarah died there, she was buried there. Even Isaac died there, Isaac was buried there. Even Jacob also, when he was buried at Egypt, Jacob told very clearly, "You please bury all my bones back in my land." That because God called them to be there. So they never returned. They confessed themselves that although they were there in Palestine, they said, "We were strangers and pilgrims." That's what we find in 13th verse and the last part. They said, having confessed that they were strangers and exiles on the earth. और ये बातें हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने सेवकों को कहा था कि किस प्रकार जो मेरी पत्नी शारा मृत हुई है उसे हम इसी क्षेत्र में दफन करना है, अपने देश में वापस नहीं जाना है। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दिया अब्राहम ने कि मेरे शरीर को भी वापस आप नहीं ले जाना, परंतु इन्हीं प्रदेशों में जहाँ परमेश्वर ने उन्हें रखा है वहाँ पे दफन करना। यही बात इसहाक ने भी कहा कि आपको इसी क्षेत्र में हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे दफन करना है। यहाँ तक कि याकूब ने भी अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दिया कि मुझे मिस्र में नहीं दफनाना, परंतु मुझे मेरी जन्मभूमि में जाकर दफन करना है। तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने हमेशा, जबकि वो फिलिस्तीन देश में थे, लेकिन अपने आप को वहाँ उन्होंने परदेसी और यात्री के रूप में देखा हमेशा। Even Joseph also commanded that his bones must be carried along with the people from they were exiled from Egypt and pressing forward to the promised land. और यूसुफ ने भी यही बात कहा कि अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दिया कि मेरे हड्डियां और मेरे लोग जो हैं इस मिस्र से लेकर वायदे की भूमि पर जाकर इसे दफनाए करके। So please remember, once we are converted, if that is a real conversion, if that is a genuine conversion by the power of the Holy Spirit, never return. तो प्रियो, अगर हमारा परिवर्तन बिल्कुल सच्चा है, अगर हम मसीह यीशु में सच्चा परिवर्तन हमारे हृदय में हुआ है, तो हम पवित्र आत्मा को कभी भी इनकार नहीं करेंगे और हमेशा हम आगे बढ़ेंगे, कभी भी अपने पुराने जीवन में वापस जाने के लिए नहीं सोचेंगे। Forgetting what lies behind. और इसे कहते हैं कि जो बातें पीछे रह गई है उसे भूलेंगे। So we have seen two things. Number one, the spiritual conversion. When the Lord Jesus Christ cleansed us with his precious blood, forgiven us all our unrighteousness and sins and buried all of them, and he forgets, and that should not influence our present. Even devil may say 100 and odd things, and make sure the theology what Bible says, yes, they are forgiven and they should never trouble the present. तो पहली चीज है जो पुरानी बातें जो क्षमा हमें पुरानी बातें जो भूलना है वो क्या है? हमारा आत्मिक परिवर्तन जब होता है तो उसका मतलब है कि जो पुराना पाप है और पुराने उस पाप से संबंधित जितनी बातें हैं उसे भूलना है। उसे परमेश्वर ने भी याद नहीं किया, हम भी याद नहीं करना है। हो सकता है लेकिन शैतान हमें उस बात को याद दिलाने की कोशिश करे, फिर भी हम उसे भूलना है और एक सिद्ध व्यक्ति बनकर हमें विचार करना है कि हम प्रभु में नए हो गए हैं। And secondly, like Abraham, like our forefathers in the scriptures, they considered themselves as strangers and pilgrims. Although God has promised them that God will give them land, although they could not possess the land, but by faith they saw afar off. They confessed that they were strangers and pilgrims and exiles on the earth, and they were pressing forward to the promised land.
और इसी प्रकार दूसरी बात जो है, हम अब्राहम के समान समझना इस चीज़ को कि अब्राहम और उसके पूर्वजों के समान हम भी समझना है कि हम परदेशी और बाहरी लोग हैं और हमें इस धरती पे नहीं रहना है। हालांकि अब्राहम को वायदे के देश में भेजा गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहीं रह के रहूंगा, परंतु वो हमेशा विश्वास में आगे बढ़ते रहे जहाँ परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहते थे। इसीलिए हम हमेशा आगे बढ़ते रहना है। So thirdly, we will consider the example of Apostle Paul himself. और तीसरा जो उदाहरण है वो प्रेरित पौलुस का स्वयं हम देख सकते हैं। So now we could understand that we will also should be able to say along with Apostle Paul, one thing I do, one thing I do. What is that one thing? Forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. तो प्रेरित पौलुस यहाँ एक बात कहते हैं कि एक काम मैं करता हूँ। वो एक काम क्या है? वो कहते हैं कि पीछे की बातों की भूलता हूँ और आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हूँ। So there is something called what lies behind, there is something called what lies ahead. And in between, we are there, maybe in the second point, pressing forward to or run towards the future goals and pressing forward. तो प्रियो, कुछ बातें हमारे पीछे रह गई हैं, कुछ बातें हमारे आगे हैं, हम बीच में हैं और हमें कोई जो है आगे बढ़ना है, हम अपने जीवन को आगे की ओर लेके जाना है, ताकि आगे की ओर जो बातें हमारे लिए रखी गई है, जो भविष्य में हमारे लिए उद्देश्य रखा गया, एक लक्ष्य रखा गया है, उसे हम पा सकें। The question is, in between 1 and 3, in between what lies behind and what lies ahead, where are we? Where, to what extent, and we had our journey towards the goal where we are heading forward. और हमारे लिए एक सवाल ये है कि ठीक है, आगे की ओर तीसरा पॉइंट है, पहले एक पॉइंट है, उसके बीच में हम लोग हैं, तो हम लोग कितना आगे बढ़े हुए हैं, वहां से हम कितने आगे अपने लक्ष्य की ओर जा चुके हैं, वो हमारे लिए एक सवाल है। So by faith I have kept in between half a distance. और हम कह सकते हैं कि विश्वास के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम लगभग आधी चीजों को पार कर चुके हैं, Then I have kept in between. या कह सकते हैं कि मैं उसके बीच में हूं अभी। Now I'm saying in general I have kept this maybe halfway we have passed through. और यहाँ जैसे चित्र में तो अंकल बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम आधा आगे बढ़ चुके होंगे। So, or had we just started, or had we run through and almost come to the near of the end point? और ये भी हो सकता है कि जो बातें पीछे रह गई थी उससे हम जस्ट अभी उसे छोड़ के आगे निकले होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि हम इन बातों को छोड़ के बहुत आगे निकल गए होंगे और लगभग जो आगे हमें जहाँ पहुंचना था वहां थोड़ी दूर पहले पहुंच गए होंगे। Each one of us have to examine ourselves. Where are we in the process? तो हम में से प्रत्येक लोगों को अपने आप को परखना और जांचना है कि इस प्रक्रिया में हम कहाँ हैं। There is possibility that the very initiation has not taken yet. If our sins are not forgiven, if the blood of Jesus Christ has not cleansed, if we are not converted or transformed, not become a new creation, or in other words, we can say that we are not born again or not saved. और हम ये कह सकते हैं प्रियो कि आज अगर हमने आगे जाना ही शुरू नहीं किया है, इसका मतलब अगर हम पीछे की बातों की तरफ हैं, तो संभव ये हो सकता है कि हमने उसके आगे जाना शुरू ही नहीं किया। और इसका क्या मतलब हो सकता है हम अभी भी पापों में हैं, हो सकता है अभी भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी क्षमा नहीं हुई है, हो सकता है आज भी हम परिवर्तन नहीं हुए हैं, रूपांतरित नहीं हुए हैं, नया सृष्टि नहीं बने हैं, या आज भी हो सकता है कि हम हमारा जो नया जन्म यानी जो जिसे हम मसीह में नया जन्म लेना कहते हैं, नए सिरे से वो हम नहीं लिए हैं। ये हो सकता है कि आज भी हम बचाए न गए हैं। क्या यही कारण है कि हम आगे जाना शुरू नहीं किए? So press forward to that is our study.
और आज का हमारा अध्ययन ये है कि हमें आगे की ओर बढ़ना है। What lies ahead? To which आगे place I have to press forward? That is the question. आगे की ओर ऐसा क्या रखा है, आगे की ओर ऐसा क्या लक्ष्य है जिसकी ओर हमें बढ़ना है, उसे जानना है। Then we need to read chapter 3, verse 14. तो उसको समझने की हम फिलिपियों की किताब 3 अध्याय का 14 वचन पढ़ना है। I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों 3 के 14 में कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। So there is a specific goal meant for each and every one of us. इसका मतलब है प्रियो कि हम में से प्रत्येक लोगों के लिए एक विशेष लक्ष्य निर्धारित है। Each Christian or every believer of the Lord Jesus Christ must reach this goal. That is the target. और प्रत्येक जो विश्वासी हैं, जो मसीह कहलाते हैं, वे इस लक्ष्य की ओर पहुंचना है जो उनके लिए निर्धारित की गई है। So there are common goals and there is a special goal. तो जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, एक सामान्य लक्ष्य है और एक विशेष लक्ष्य है। So what is the common goals? Every believer must become like Jesus Christ. Every believer must be cleansed thoroughly so that he may be morally pure, because without holiness no one can see the Lord, no one can enter into the heavens of heavens. और प्रियो, ये जो सामान्य लक्ष्य क्या है कि हर मसीही व्यक्ति यीशु मसीह के जैसा दिखाई दे, यीशु मसीह के जैसा जिए, ताकि उनके द्वारा वो उनके समान वो यीशु मसीह के लहू के से शुद्ध हो जाए और पवित्र बन जाए और पवित्रता को प्राप्त करे, और इसके द्वारा वो स्वर्गों के स्वर्ग में जा सके, वहां जाने से वंचित ना हो। So that is the common goal. ये है सामान्य लक्ष्य जो सभी लोगों के लिए है। But there is a specific goal also. परंतु इसके अलावा विशेष लक्ष्य भी होता है। So this is not the time which we can take, to discuss about in detail, but I will just give you a glimpse. You need to work on it. Maybe God willing, some other time we will work on it. और इसे विस्तृत रूप से बताने का समय नहीं है, परंतु मैं आपको केवल एक झलक दे रहा हूँ ताकि आप इस पर अध्ययन करें और काम करें, और प्रभु ने चाहा तो आगे हम अध्ययन करेंगे। So we also call it a vision. तो ये जो विशेष लक्ष्य है, इसे हम दर्शन कहते हैं। What is vision? Vision means you are able to see the end goal right now. What will happen? Maybe I may live 10 years or 20 years or 30 years or 40 years or 50 years, and what God has in his mind concerning me, why God has saved me, why I'm a believer, why I'm a Christian, what God wants me to do on the face of the earth, what is the purpose of my life in specific. और यह दर्शन क्या होता है प्रियो? दर्शन का मतलब होता है कि मैं अपने अंतिम लक्ष्य को देखने में सक्षम हूँ। ठीक है, मेरे साथ आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल या 50 साल मैं जीऊँ, उस 50 साल के जीवन के दौरान परमेश्वर के हृदय में मेरे लिए क्या योजना है? उन्होंने मुझे क्यों बचाया? क्यों एक विश्वासी बनाया? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? और एक विशेष जो उद्देश्य है, उसको जानना जो है हमारे जीवन का विशेष लक्ष्य कहलाता है। So, normally, when we train leaders, we will talk about all these things. A leader will have vision, and based on the vision, he will have a mission. When he understands his mission, then he can set goals. Once he set goals, he will have the values how he can execute the mission to reach the goal, and he will evaluate and refines the vision, and that's how he'll spend the whole project. तो जब भी हम प्रियो लीडर्स को प्रशिक्षण देते हैं तो ये बातें हम सिखाते हैं कि दर्शन क्या होता है। दर्शन वो बातें हैं जो हमें एक योजना की ओर लेके जाती हैं। योजना, जो कार्य योजना है, वो हमें लक्ष्य की तरफ लेके जाती है, और लक्ष्य की तरफ हम जाते हैं तो हम उसके मूल्य को निकालते हैं, क्योंकि जब तक हम उसके मूल्य को नहीं समझेंगे हम लक्ष्य को नहीं पा सकते। और उसके मूल्य के निकाल कर जब आगे बढ़ते हैं तो उसको हम फिर से विश्लेषण करते हैं ताकि फिर से अपने दर्शन को समझ सकें। Suppose we think of what is the vision of Apostle Paul.
जैसे कि हम इस बात को समझें कि प्रेरित पौलुस का दर्शन क्या था। So, Apostle Paul has been chosen as an apostle to the Gentiles. तो प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है कि मुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए चुना गया है। So, that is his vision. और वो कहता है ये मेरा दर्शन है। That's what he says, the vision which I received from the heavens. I'm not going to be disobedient to my vision, to my vision. When he talks about his testimony, we find it in Acts. और इसलिए वो अपनी गवाही के बारे में बताता है कि जो बातें मुझे स्वर्ग से मिली है, जो दर्शन मुझे मिला है, मैं उसे पूरा कर सकूं और उसे मैं बिना पूरा किए ना रहूं। ऐसा वो प्रेरितों के काम में बताते हैं कि वो बुलाहट क्या है। So every believer is called with a purpose. Every believer, male or female, and whatever may be the background, whatever may be the educational background, whatever may be the situation, every believer God calls with a specific purpose. Before we die, we should be able to have the satisfaction saying that, yes, God has called me. I lived 50 years or 60 years or 70 years, maybe after being born again 30, 40 years. Yes, I have completed the mission which God has given me, and that kind of satisfaction we need to have. और प्रत्येक विश्वासियों को प्रियो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे उसकी शिक्षा कुछ भी हो, ये बात मालूम होना है कि प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर ने एक विशेष योजना के लिए बनाया हुआ है। इसलिए प्रत्येक विश्वासी मरने से पहले, चाहे वो 50 साल, 60 साल या 70 साल जिए, और हो सकता है कि वो नए जन्म के बाद 30 से 40 साल जिए, पर उनको उनका लक्ष्य होना चाहिए कि वो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए मिशन और योजना को पूरी कर सकें, ताकि वो उनके हृदय में एक सांत्वना और एक विश्राम मिल सके कि हाँ, मैंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया है। If a believer doesn't know his vision at all, then he cannot plan his mission. और प्रियो, अगर किसी विश्वासी का दर्शन स्पष्ट नहीं है, तो वो कभी भी अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य नहीं बना सकते। I'm not talking about a common vision. I'm talking about a specific, individual, unique mission of each and every believer. और प्रियो, मैं सामान्य बुलाहट की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु विशेष लोगों को जो एक विशेष तरीके से अलग करके बुलाए गए हुए लोग हैं, उनके लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। We are here on the face of the earth with a purpose. हम इस पृथ्वी में हैं, एक विशेष योजना के तहत हैं। So, if you don't know the purpose of your life, you cannot have any goals in your life. अगर आप अपने जीवन के दर्शन को नहीं जानेंगे, तो कभी भी आप एक लक्ष्य को अपने लिए नहीं बना पाएंगे। Let us take example of Apostle Paul, then you will be able to understand even what mission means. और आइए हम प्रेरित पौलुस का उदाहरण ले लें, ताकि हम समझ जाएं कि मिशन अर्थात योजना क्या होती है। So we are not going to go in detail about Apostle Paul's personal life. Otherwise, I would have taken to Acts chapter 26 and explain all those things 1, 2, 3, 4, 5 like that. और इसमें हम प्रेरित पौलुस की व्यक्तिगत जीवन की बातों को देखने का समय नहीं है। ऐसा होने से हमें प्रेरितों के काम 26 को देखकर एक-एक बातों को समझना पड़ेगा। So Paul's vision is to be an apostle to the Gentiles. प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरा दर्शन ये है कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित चुना गया हूँ। To accomplish his vision, he has to has a mission. What is that mission? Number 1, preach the gospel. And number 2, gather all who responded to the gospel as a church and nurture the church and train the people of God, raise them to the leadership, hand over them the local church, and then pass on, go to another place and then preach gospel and build a church there. Likewise, Apostle Paul has a vision, and based on the vision, he has a mission. तो प्रेरित पौलुस बताते हैं कि उनको एक दर्शन है कि वो अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं, और उस दर्शन को पूरा करने के लिए वो क्या योजना बनाते हैं? वो सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार के द्वारा वो लोगों को जमा करते हैं, एक चर्च बनाते हैं, और चर्च के रूप में जब वो बन जाती है, कलीसिया उसे पोषण देते हैं, उसे आत्मिक भोजन देकर बढ़ाते हैं। फिर वहाँ वो एक लीडर की हैं, और उस प्रेरित को या लीडर को वो कलीसिया को हैंड ओवर करके, अर्थात उस लीडर के हाथ में देकर आगे चले जाते हैं,
और आगे जाकर फिर से एक जगह पे सुसमाचार सुनाकर वो फिर से वहां कुछ लोगों को इकट्ठा करके कलीसिया बनाते हैं। ये है प्रेरित पौलुस के दर्शन को पूरा करने की योजना। In other way, in a contemporary language, we can say that he is a missionary. और अलग शब्दों में अगर हम कहें इसका कनेक्शन चला गया, इसका नेटवर्क पूरा है शायद, और ज्वाइन होना चाहिए। यस, आ गया। ऑडियो नहीं आ रहा है भैया। अब भी आ रहे हैं अंकल जी? नहीं, अभी नहीं है, और आना है। या कनेक्ट हुआ है, वीडियो आ गया मगर ऑडियो नहीं। अभी वॉइस है अंकल? Yes, now is okay. So Apostle Paul is a missionary because he keeps preaching gospel, raising the church, and then goes to another new place. He preaches the gospel there. He raises one more church. Likewise, he will be the source of raising many local churches. तो हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की जो योजना थी वो कैसे थी। वो जहां भी जाते थे सुसमाचार सुनाते थे। सुसमाचार को सुनाकर वो एक कलीसिया का निर्माण करते थे। कलीसिया को एक अगुवे के हाथ में देकर वो फिर अगली जगह पे जाते थे और वहां सुसमाचार सुनाकर कलीसिया बनाते थे, फिर उसे एक अगुवे के हाथ में देके जाते थे। इस प्रकार प्रेरित पौलुस अपने जीवन के मिशन को अर्थात योजना को पूरी करते थे। Very few are called to be missionaries, not many. और बहुत कुछ लोग हैं जिसे इस प्रकार के मिशनरी हम कह सकते हैं, बहुत लोग को नहीं कह सकते। They are the real leaders, they motivate many people, and they'll form a big team, and then and he will train them up, and slowly he will raise us many local churches. और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो मिशन बनाते हैं और एक टीम का निर्माण करते हैं। उस टीम को वो ट्रेन करते हैं अर्थात प्रशिक्षण देते हैं और उसके द्वारा वो एक लीडर्स को खड़ा करते हैं ताकि वो भी आगे काम कर सके। Some are called to be evangelists, so they preach gospel, and they'll hand over the souls to the local church. That is their responsibility. They're evangelists. और कुछ लोग इवेंजलिस्ट होते हैं अर्थात सुसमाचार प्रचारक होते हैं। वे क्या करते हैं? सुसमाचार प्रचार करते हैं और कुछ लोगों को वो तैयार करते हैं, उद्धार में लाकर वो उसे कलीसिया को सौंप देते हैं। And some people are called as shepherds. What they will do? God will hand over them few people, and they will train them as father trains his own children. और कुछ लोग चरवाहे की सेवा में होते हैं और जिन्हें चरवाहे का वरदान मिला है, उनके पास कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो प्रशिक्षित करते हैं एक पिता के समान, जैसे पिता अपने पुत्र को सिखाता है। So some have a vision of Bible teacher. So they will only teach the scriptures. They will only feed the local church. और कुछ लोग को बाइबल के शिक्षक होने का वरदान या बुलाहट होती है। वे क्या करते हैं? कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं और सिखाते हैं। So there are many ways. If you do not know your vision, you please consider these important points. So you identify your calling. What is the burden the Lord has given you? And what are all the gifts of the Holy Spirit God has given you? What are all the talents? Talents means comes by physical birth. Gifts of the Holy Spirit comes from spiritual birth. And then what are all the relationships God has established, because no relationship is an accident. And what are the exposure God has given you, and what are all the challenges you are facing, what are all the open doors and closed doors God has caused in your life.
And do you have counselors with whom you will consult and find out and fine tune your calling, fine tune to identify your calling? अगर आप अपने दर्शन को आज नहीं पहचान रहे हैं, तो आप उसे पहचानने के लिए प्रार्थना में रहें, और साथ ही आप अपनी बुलाहट को पहचानने की कोशिश करें। और जब आप अपनी बुलाहट को पहचान लेंगे, तब उसके द्वारा आप जो है परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। अपने उसके द्वारा आप अपने जीवन की अ, वरदान को पहचान पाएंगे। और वरदान जो कि आत्मिक वरदान होते हैं, और साथ ही अपने जीवन के टैलेंट को आप पहचानेंगे, जो कि गुण हम हुनर जिससे कहते हैं, जो कि शारीरिक जन्म के द्वारा आपको मिला होता है शारीरिक रीति से। तो आप आत्मिक वरदान से मिले हुए गिफ्ट को उपयोग करेंगे, साथ ही शारीरिक रूप से जो मिले हुए हुनर का उपयोग करेंगे। और इसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को समझेंगे, और उसको समझने के बाद ताकि आप जो है आगे बढ़ सकें, और जो आपको चुनौती मिलेगी उसको स्वीकार करके आगे बढ़ के कुछ चीजें जो आपके लिए खुली है, और कुछ जो द्वार परमेश्वर ने आपके लिए बंद किया है उसको आप समझ पाएंगे। उसके बाद आप अपने लिए कुछ काउंसलिंग करने वाले लोगों के पास जा सकते हैं, ताकि आपकी बुलाहट को और सही रीति से रिफाइन करके फाइन ट्यून करके आपको बता सके। So you can have goals as a common goal, and you need to have a personal goal, personal why God has called you, what one unique thing God wants you to do. So that's important. So without understanding mission, you cannot set goals. और प्रियो, इसीलिए हमने बोला कि जो बुलाहट होती लक्ष्य होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है सामान्य लक्ष्य, और दूसरा होता है विशेष लक्ष्य, जो जिसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है कि वो कौन सा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है। तो एक बात याद रखिएगा प्रियो, कि जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, आप अपने लिए कभी भी एक मिशन अर्थात योजना नहीं बना सकते। So we have seen that there is something that is behind us, our past, and there is something a set, a proper goal, and then we are pressing forward. This is what we could understand now. तो हम इस बात को समझना है प्रियो, कि कुछ चीजें हैं जो हमारे पीछे रह गई हैं, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। कुछ चीजें हमारे आगे रखी है, जिसे हम लक्ष्य कहते हैं, और हम उसकी ओर आगे अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। To make it simple, we can say that the number one is past, number three is future, number two is present. तो इसे हम कह सकते हैं, इसे समझने के लिए, कि पीछे जो है पहली चीज जो है भूतकाल है जो बीत गया। तीसरा चीज जो आगे है हमारे लिए भविष्य है, और उसके बीच में जो दूसरा नंबर है वो हमारा वर्तमान है। So we have seen that we need to forget what lies behind. तो हम इस बात को समझना है कि जो बातें पीछे रह गई है उसे हमें भूलना है। So now let us concentrate on our present, and then I'll get back to Apostle Paul's what he was trying to forget. तो आइए हम अपने वर्तमान के बारे में जो बातें उसको कुछ सीखें, उसके बाद प्रेरित पौलुस अपने जीवन के विषय में क्या बताते हैं उसे भी हम समझ पाएंगे। Apostle Paul says in Philippians chapter 3 verse 10, I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. I think we need to read that, such a wonderful, amazing passage. Chapter 3 verses 10. I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being confirmed to his death. Verse 11, in order that I may attain to the resurrection from the dead. और फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसके 10 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु में की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। Apostle Paul is trying to say that I cannot press forward with my own strength. I need the power of resurrection. Only the power of resurrection will enable me to press forward, because there is a lot of opposition, lot of discouragement, lot of pain and suffering, lot of challenges. It's not like a smooth path. It's like a path with lot of difficulties, lot of challenges. We need the power of resurrection to press forward. प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं खुद की सामर्थ्य से कभी भी आगे नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की सामर्थ्य चाहिए। और वो जिस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मांगता है, ताकि वो कहता है कि मैं तमाम विरोध, दर्द,
सताव और इस कठिनाई के मार्ग के बीच में उसी पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर मैं आगे बढ़ सकूं। सो भाई साहब, आपका वॉइस ठीक नहीं आ रहा है। इससे पहले वैसे आ रहा था, वैसा नहीं आ रहा है। इज इट फॉर मी ओनली, फॉर एवरीबडी? प्लीज चेक आउट। या इससे पहले वैसा आ रहा था, वैसा नहीं आ रहा है आज। ओके अंकल, जस्ट आई विल। So I think in my mobile, uncle, there is network issue. So I use another mobile. That is why voice is compromised. या So we have to use this, uncle. अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं। जो कोई है अपने अपने साथ, वैसे ही मैनेज करेंगे। सो हाउ कैन वी प्रेस फॉरवर्ड? We can press forward only by the power of his resurrection. So in this, No speech. please repeat, uncle. Yeah, we cannot press forward with our own strength and power. We need the power of resurrection of the Holy Spirit. तो यहाँ हम इस बात को सीख सकते हैं कि हम अपनी खुद की सामर्थ्य से आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की, अर्थात यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य की जरूरत है। If you have to press forward to reach the goal, you must know Him who? The Lord Jesus Christ and His resurrection. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो वचन कहता है कि आपको उसे जानना होगा, और वो कौन है? अर्थात यीशु मसीह। Here Apostle Paul says, I may know Him and the power of His resurrection. He doesn't stop there. He says, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. और प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ, अर्थात मसीह को मैं जानना चाहता हूँ, साथ ही उसके पुनरुत्थान की सामर्थ अर्थात मृत्युंजय की सामर्थ को भी जानना चाहता हूँ। और प्रेरित पौलुस यही नहीं रुका, परंतु वो कहता है कि मैं उसके दुखों में भी सहभागी होने को जानना चाहता हूँ, ताकि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। So it is simple. Without crucifixion, there is no death. Without death, there is no resurrection. इसका मतलब है प्रियो कि क्रूसीकरण के बगैर मृत्यु नहीं हो सकती, और मृत्यु के बगैर पुनरुत्थान नहीं हो सकता। Please remember, my dear brothers and sisters, cross is the centerpiece of our life. एक बात याद रखिए प्रियो, कि क्रूस जो है हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। Only with the power of resurrection we can press forward, or else we will give up, we will get back. There are many options, there are many options, and we can get back, or we can give up, and we can just abruptly stop our journey. प्रियो, अगर पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ ना हो, तो हम कभी भी सेवा या हमारे जीवन की बातों को छोड़ सकते हैं, पीछे भी हट सकते हैं और रुक भी सकते हैं। So the point is, the power of resurrection, when we experience the power of resurrection, we will also have the fellowship of his suffering. We may not be able to suffer the way how Jesus Christ suffered on the cross of Calvary, but we will have some kind of sufferings through the local church members, or maybe through outside church members, maybe through some people of our friends, or through health problem, or some kind of discouragement, some kind of question, some kind of bogging down, some kind of baggage. You will have it. You cannot have a smooth, comfortable journey as you press forward. Please remember that. और एक बात समझिएगा प्रियो, कि अगर हमारे जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ है,
तो उसके आगे हमारे जीवन में दुखों में सहभागी होने का अनुभव है। मतलब मसीह के दुख में हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, ये दुख हमें कलीसिया की तरफ से आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, मित्रों की तरफ से भी आ सकता है, हमारे स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है, हमें कोई निराशा का सामना करना पड़ सकता है, हमारे जीवन में कोई सवाल आ सकते हैं या बोझ भी आ सकता है। इसका मतलब है कि हम इसमें बड़े आराम से नहीं जा सकते, परंतु कुछ कठिनाइयों से ही हमें होकर इस मार्ग में चलना पड़ेगा। So please remember these steps: crucifixion, death, and then resurrection. Only by the power of his resurrection we can press forward. Let me repeat this once again. और एक बात याद रखिएगा प्रियो, जैसे मैंने बताया 3 बिंदु कि पहले क्रूसीकरण होता है, उसके बाद मृत्यु आती है और उसके बाद पुनरुत्थान होता है, अर्थात मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के बगैर हम आगे अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। So, in the Bible, we find that not only know him, you learn Christ and you have to reflect Christ in the process. और इसलिए यहाँ वचन बताता है कि हमको ना केवल मसीह को जानना है, परंतु हमको मसीह का अध्ययन करके मसीह के समान भी बनना है। That means when you know Christ, you will learn Christ. In the process of learning Christ, there is a transformation. That means as you press forward towards the goal, you will grow to be like Christ. You will grow in your moral purity. You will grow, day by day, you will become holy like God. और एक बात याद रखिएगा प्रियो कि जैसे-जैसे आप प्रभु को जानेंगे, उसके साथ आप मसीह की मसीह बनने के लिए शिक्षा आपको मिलती जाएगी। इसके द्वारा आप मसीह को जानेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन के सही लक्ष्य को आप जान पाएँगे और वो लक्ष्य यही है कि आप मसीह के समान बनेंगे। आपके जीवन में नैतिक शुद्धता आती जाएगी और आप परमेश्वर के समान पवित्र होते जाएँगे। So, again, three things: know Christ, learn Christ, reflect Christ. Here, Matthew chapter 5, verse 16, the Lord Jesus Christ says in the Sermon on the Mount, saying that let your light so shine before the people when they see the light, and they will thank and praise God the Father. That is how you reflect Christ. और यहाँ हम सीख रहे हैं प्रियो कि पहले हम परमेश्वर को या अर्थात यीशु मसीह को जानते हैं। जानने के बाद हम मसीह बनना सीखते हैं। उसके द्वारा हमारे जीवन में हम मसीह को प्रदर्शित करते हैं। और किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? जैसे मत्ती 5 के 16 में पहाड़ी संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारे जो प्रकाश है और उनके द्वारा तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई होती है जब वे लोग तुम्हें देखते हैं। So that is a transformation we enjoy. The Lord Jesus Christ, I am the light of this world. And then he says, you are the light of this world. So we reflect God through our life and testimony. तो प्रिय हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति हूँ, परंतु परिवर्तन के द्वारा वो हमें भी ज्योति के रूप में देखता है और तब कहता है कि तुम भी जगत की ज्योति हो और इसके द्वारा लोग तुम्हारे जीवन की भलाइयों को देखते हैं। So in the process of pressing forward, reaching the goal, we will be transformed in our life and character, and at the same time we will be serving a specific purpose of God's calling in our life. और हम देखते हैं प्रियो कि हम जब आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो इसमें पहली बात हमारे जीवन की परिवर्तन तो आती ही है, साथ में हमारे जीवन का चरित्र भी परिवर्तन होता है और उसके इसी समय परमेश्वर की बुलाहट हमें मिलती है जिसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं। So, Philippians chapter 3, verse 7 and 8, knowing Christ and knowing his power of resurrection is not easy. It's not easy. There, Apostle Paul says, I forget what lies behind. So as to forget what lies behind, Philippians chapter 3, verses 7 and 8, Apostle Paul says that, let me read it for you. Whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ my Lord, Jesus my Lord, from whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish so that I may gain Christ. और बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहचान में बनना
उसकी बुलाहट पे चलना इतना आसान नहीं है। वो इस कठिनाई को बताते हैं फिलिपियों 3 अध्याय के 7 और 8 वचन में। कहते हैं जहाँ लिखा है कि आ, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। I count all things to be loss. I count them mere rubbish. और वो कहते हैं कि मैं अपने लिए सब चीजों को हानि समझता हूँ, और इन मेरे लिए ये सब एक कूड़ा समान है। Why? Why? और वैसे Verse 7 वैसे says, for the sake of Christ. And verse 8 says, in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. ये जो दो बातें हैं जो वो कहता है बातों को इस समझता होगा कि सब चीज मेरे लिए कूड़ा है, वो ये बातें क्यों कहता है? पहला इसलिए कि वो कहता है कि मसीह के कारण मैंने इस बात को सबको हानि समझ लिया है, और दूसरा वो कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, इसलिए मैंने इस दुनिया को कूड़ा समझ लिया। And thirdly, he says that verse 9, that I may be found in him. In him. और 9वें वचन में वो कहता है कि मैं उसमें पाया जाऊं, अर्थात मसीह में पाया जाऊं। So for that reason, he has to pay price. और इसलिए वो कहता है कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। So all these things we have summed up saying that know him and know the power of resurrection. तो इस पूरे वचन से वो कहता है ये करना पड़ेगा हमें कि हम उसे जानें और उसकी सामर्थ्य को जानें। So forget or count loss or count rubbish. What? He says, I'm circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, zeal persecuting the church, and righteousness, I'm blameless. तो जो कहते हैं कि मुझे पीछे जो बातें हुई है वो क्या है? वो बातें जिसे मैंने हानि समझ लिया था, और वो बातें जो मेरे लिए पूरा है आज। और वो इसलिए वो कहता है कि ये सब बातें कैसे पूरी हुई? उसने कहा अपने जीवन के विषय में गवाही देकर कि मेरा 8वें दिन खतना हुआ, और उन्होंने कहा कि मैं इज़राइल के वंश का हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं इब्रानियों का इब्री हूँ। फिर वो कहते हैं कि अ, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ। फिर वो कहते हैं उत्साह के विषय में कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला हूँ। और अगर अगर आप कहें कि धार्मिकता के विषय में तो मैं निर्दोष हूँ। Verses 5 and 6, if you read, you will find the list. ये 5 और 6 वचन जब आप पढ़ेंगे फिलिपियों की 3 अध्याय का, तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। They are, in fact, very good degrees. और वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी एक कहना चाहिए एक डिग्री है, उसके एक कहना चाहिए कि एक योग्यता है। And but Paul says, I don't care all these things, because with all this I am unable to know Christ, because this is what the law, but now I'm in grace. I may have to know Christ, the crucifixion, the death, and the power of resurrection, not the old, few medals or few degrees or few appreciations, and maybe a status and maybe a kind of pomp and glory. All these things I count loss and rubbish, so that I may know Christ and I may be found in him, and I have the excellent surpassing value of knowing Christ my Lord. और आपको बता दें कि देखा जाए तो मैं पुरानी व्यवस्था के अनुसार कितनी सारी मेरी योग्यता थी, लेकिन सब व्यर्थ हो जाती हैं। और मैं जब मसीह में आता हूँ तो इन सारी मेरे पद को, डिग्री को, स्टेटस को, मेरी तारीफ को मैं पूरा समझता हूँ। और आज मैं उस व्यवस्था के कारण नहीं, परंतु मसीह के अनुग्रह के कारण मैं उसे जानना चाहता हूँ, और उसकी मतलब मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं कि मुझे इसके लिए उसके साथ दुखों में सहभागी होने को भी तैयार हूँ। और इसके लिए वो कहता है कि मैं प्रभु को और उसकी मृत्यु की सामर्थ को और साथ ही दुखों में सहभागी होने को भी मैं अच्छे से जानना भाई चाहता साहब हूँ। एकदम सुनने नहीं आ रहा भैया.
आपका वॉइस एकदम बहुत वीक हो गया है. You please check the previous network. Is it working? Is it restored? इससे पहले वो अच्छा था. ये एकदम. Please have patience. He's joining now again. Yes. ऐसा कीजिए. If you are not able to, if your network is weak, you can put off your video so that at least audio you'll have full strength of the signal. Okay, we have seen. So now my voice is clear, uncle. Yeah, definitely clear. So we have seen three kinds of forgetting the past. The one is our sins are being forgiven and we should never dig the grave. Even devil cunningly deceives us. We should be careful and watchful. That's number one. Number two, like Abraham, and count the present as strangers and pilgrims, and we have a goal, and a city which is built by God himself, and never get back to the land of Chaldeans. तो हम देखते हैं प्रियो, जो पुरानी बातों को भूलना है उसको हमने देखा था कि तीन मुख्य बिंदु में। पहला था कि हम पुराने पाप को भूलना है। पुराने पापों को हम फिर से कब्र खोद के नहीं निकालना है। हालांकि शैतान कई बार हमारे जीवन में पुराने पापों को ला सकता है हमारे सामने, हम उससे सावधान रहना है। दूसरी बात हमने देखा था कि अब्राहम ने अपने आप को परदेसी और बाहरी कहा था, और कहा था कि वो परमेश्वर के दिखाए हुए देश में उसको लक्ष्य बनाकर वो आगे जा रहा है, जबकि उनको पुराने देश में जाने का अवसर था, लेकिन वो नहीं गए, वो लक्ष्य की ओर आगे गए। So a stranger and pilgrim means, suppose if you have to go to Delhi, maybe for 3 days work. तो अगर कोई व्यक्ति परदेसी और बाहरी, इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए, उसको उदाहरण के रूप में समझने के लिए, कि आप कुछ काम के लिए 3 दिन के लिए दिल्ली गए हैं। So you will not carry your almara along with you, right? तो 3 दिन दिल्ली में रुकने के लिए आप अपने साथ अपनी अलमारी को लेकर नहीं जाएंगे आप। You will not take the geyser along with you. You will not take AC along with you. You will not, you will just maybe two or three or four, three pairs, and then in a very few, just in a suitcase, you'll just go to a hotel, or maybe some accommodation with friends or so, and then get back just with a small suitcase. और आप देखेंगे, इसके लिए कभी भी आप दिल्ली में 3 दिन के लिए काम के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आप अलमीरा, गीजर
और ये सब बड़ी चीज़ें नहीं ले जाएँगे, परंतु कुछ कपड़े रख के आप सूटकेस में एक छोटी-सी सूटकेस में लेके जाएँगे और आप वहाँ किसी होटल में रुकेंगे या तो किसी अपने मित्र के घर रुकेंगे और ताकि आप वो एक जो काम जिस लक्ष्य को लेकर गए हैं, आप उसे पूरा कर सकें। So, on the face of the earth, are we living to eat or eat to live? तो एक बात याद रखिएगा प्रियो कि इस धरती पर हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं या फिर खाने के लिए जी रहे हैं, इस बात को हम जानना है। Very simple. In the same way, we need to have as simple life as possible. Don't live as if we are going to be here on the face of the earth forever. We are here only for few years, and one day we have to live everything and then just go. Just as we came with bare hands, we have to go with bare hands. और याद रखिएगा प्रियो एक साधारण तरीके से कि हमें जीवन में इसी तरीके से याद रखना है कि इस धरती पर अस्थायी रूप में आए हैं। यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं। सब कुछ को एक दिन अचानक से छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। अर्थात हम खाली हाथ आए हुए हैं और हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। So that is the second way of forgetting what lies behind. The third thing is there are certain spiritual degrees that boost you, that comes in between you and God, and that really offends your pressing forward, and that adds a lot of luggage on you. You can't press forward, and you have to forget, and you have to count them loss and rubbish. और तीसरी बात है कि आपको आत्मिक उन्नति करनी पड़ेगी, आत्मिक ऊँचाइयों पर आपको रखना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में जो बातें आपको आगे बढ़ा सके, उन बातों की ओर ध्यान देना है, ना कि वो सांसारिक बातें जो कूड़ा के समान पौलुस कहता है, जो मेरे हानि के लिए थी, उनको मैं भूल के आगे बढ़ता हूँ, इन व्यर्थ बातों को भूलना है। So the first forgetting is our total past, our rubbish and all wicked life. तो पहला जो भूतकाल जिसे हमें भूलना है वो हमारे पुराना जीवन जो जिसमें बहुत सारी दुष्टता और पाप थी। And secondly, any entanglement of this world, some kind of temptation and sin, and somehow to pull you back to this old life, that you should be very careful. It may be material and whatever it may be, but that's I live as a stranger and pilgrim, just as Abraham did. और दूसरी चीज़ है जो आपको पीछे कर सकती है, संसार है, उसकी वस्तु है, कुछ सताव की बातें हैं, पाप है, प्रलोभन है, इन सब को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, जैसे कि अब्राहम के समान आप परदेसी और बाहरी हों। Thirdly, the very spiritual things, they look very spiritual, but still that becomes some kind of offense, some kind of disturbance, some kind of luggage. Somehow you will not press forward. So leave off and forsake all that. No, we are not serving the Lord for name and fame. We are not serving the Lord with any hidden agenda. So we have to count things loss and rubbish, otherwise we will not be able to know him and know his power of resurrection. और प्रियो तीसरी चीज़ है कि हमारे आत्मिक जीवन ऐसे होना है कि हम विरोध को या मान लीजिए रुकावट को हम देखते हों, उसे छोड़ना है हमें, उसे भूलते हुए आगे बढ़ना है और उसे हम छुप के अपने साथ ले जा नहीं सकते, परंतु हम उसे इस संसार के कूड़ा के समान और इन रुकावटों को हानि की वस्तु समझ के हमें छोड़ना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। So we need to run. Verse 14, I press on towards. In other version says that I run to the goal. Why? For the prize of the upward call of God in Christ Jesus. और अगली चीज है प्रियो ताकि हम आगे बढ़ सकें, जैसे कि 14 वचन में लिखा है निशाने की ओर दौड़ सकें, जैसा कि हम देख रहे हैं 2026 की ओर हमें आगे बढ़ना है ताकि वो इनाम हम पा सकें जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह में हमें ऊपर बुलाया गया है। And verse 12 says, not that I have already obtained or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. और वो 12वें वचन में पौलुस कहते हैं कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। So God has, he held us.
He has a purpose for each and every one of us, a very unique, very specific for each and every one of us. That we need to catch. तो परमेश्वर ने हमारे लिए, हम सबके लिए जो एक विशेष योजना रखी है व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन के लिए, उसे हमें पकड़े रहना जरूरी है। Apostle Paul himself says that I don't think I have attained by now, or I don't think that I am a perfect. Verse 12. और प्रेरित पौलुस इस बात को बताते हैं कि मैं तो ऐसी भावना नहीं रखता हूँ या मतलब नहीं बोलता हूँ कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, ऐसा वो नहीं कहते हैं। In verse 13, I do not regard myself as having laid hold of it yet. और 13 वचन में भी वो कहते हैं कि ये मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरी भावना ये है कि मैं पकड़ चुका हूँ। We know that Apostle Paul was beheaded in the AD 67. हमको मालूम है कि AD 67 में प्रेरित पौलुस का सिर काट के उनकी हत्या कर दी गई थी। And then this letter was written in AD 62. और ये जो खत है ये AD 62 में लिखा गया है। And there was about 5 years gap. He says, just before 5 years, I am not really ready yet. और ये वचन लिखने के बाद वो 3 वर्ष तक जीवित थे। इसका मतलब है अपने धरती छोड़ने के 3 वर्ष पहले भी वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी सिद्ध नहीं हुआ हूँ, ऐसी मेरी भावना है। Just before his death, you know what he says? और अपनी मृत्यु के ठीक पहले पौलुस क्या कहते हैं? 2 Timothy chapter 4 and verse 7, verse 6 and 7. Verse 6, he says that I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. और दूसरा तिमुथी 4 अध्याय के 6 और 7 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मैं अब अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। So I run towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके मसीह यीशु मसीह में मुझे ऊपर बुलाया गया है। My time is up. I have to close here. और ये हमारा समय समाप्त होता है, हमें बंद करना पड़ेगा। So we have studied many things. तो आज हमने प्रियो बहुत सारी बातों को सीखा है। So we have seen that we have something which has behind, that means our past. We have something as a goal in our future, and the present, where are we? That is a question. और हमने सीखा कि कुछ बातें हमारे पीछे रह गई हैं, कुछ बातें हमारे आगे भविष्य में लक्ष्य की ओर है और उसके बीच में हम अभी वर्तमान में हैं। 25 is almost coming to the conclusion, and 26 we are almost going to invite it. और 2025 को लगभग हम अलविदा कहने वाले हैं और 2026 को हम कुछ दिनों के बाद स्वागत करने वाले हैं। We have spent many years. और हमने बहुत वर्ष बिता चुके हैं। We don't know how long we'll live. और हमें नहीं पता कि हम और कितने वर्ष जिएंगे। We don't know when the Lord Jesus Christ comes. हम ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह कब आने वाले। The little life which is left off, एक छोटा सा जीवन है जो हमारा बचा हुआ है how we are going to work on it. और इसमें हम कैसा काम करेंगे। The Lord should look at us and say that, well done thou faithful servant, enter into your master's eternity. Can our Lord say like that? क्या प्रियो प्रभु हमें देखकर हमारे लिए शब्द कह पाएंगे कि हे मेरे विश्वास योग्य सेवक, तूने एक अच्छा सेवा किया, चल अपने स्वामी के साथ तू कुछ बातों को पाने के लिए सहभागी हो जा। Now Apostle Paul says that I am ready. I finished the और course. I kept the faith, and my responsibility what God has given I have accomplished. I am ready to die, he said. प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे अर्घ का समय तो आ चुका है कि मैं अर्घ के समान उड़ेला जाऊं। मेरे कूच करने के समय आ गया है क्योंकि मैंने अपने विश्वास की दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। वो कहते हैं कि मेरे इनाम पाने के लिए मैंने अपने कार्यों को पूरा किया है। Let us examine ourselves. और वैसे ही हम भी कह सके, जैसे पौलुस कह रहा है कि मैं तैयार हूँ, मेरा समय आ गया है, वैसे ही हम अपने आप को भी परखे और कह सके कि मैंने भी ऐसे पूरा किया है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।